अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज तेलंगाना असम्बली सेशन का तीसरा दिन है। आज के दिन AIMIM के फुल लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन अवीज़ साहब मौजूद थे असम्बली में और उन्होंने वक्फ बोर्ड जायदाद को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशली पावर आखिर कब देंगे, क्योंकि पिछली बार वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशली पावर दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिला। वैसे जो वक्फ लैंड की माफिया है उनके पास इतनी दौलत आई कहां से, और वो लोग ये वक्फ लैंड की जायदादें बेच कर अमेरिका में, लंदन में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। किसकी बदौलत? जो तेलंगाना की गरीब मजलूम बेबस आवाम है, मुस्लिम आवाम है, जो कि ये वक्फ लैंड के हकदार है, उनको तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो बड़े बड़े चोर है, जो बड़े जो है वक्फ लैंड की माफिया है, वो लोग वक्फ लैंड को बेच कर इंग्लिश कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी गरीब लोगों का हक मारकर फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद जिंदगी जी रहे बादशाहों की तरह, और हैदराबाद के गरीब मुसलमानों को झोपड़पट्टी भी नसीब नहीं है। कई लोग किराए के घर में फिर रहे हैं तो कई लोग सड़कों पर झोपड़ी डालकर अपना आशियाना बना रहे हैं। बहरहाल अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली में क्या कहा ये हम आपको दिखाते हैं। वैसे भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को काफी कम समय दिया गया था, उसी को लेकर फिर अकबरुद्दीन अवैसी ने जो है स्पीकर से भी बहसबाजी की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं असेंबली से खास खबर। अकबर साहब। Speaker sir, sir, through you, I would like to thank the minister for giving a detailed reply on this subject, sir. Sir, he has given the details as to how many properties or of the institutions of WAC identified in the second survey, and this, the work has started. He said on 426, 925 is remaining. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to please kindly spell out a specific time for completion of this entire process of issuing the gazette. This is very important, sir. The reason I'm saying this, sir, this has been pending from 2016, sir. Sir, I go by what the Honorable Minister Saab had said on the floor, that 426 properties have been, the process has been completed. But as far as my knowledge goes, sir, no, sir, nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying. I might be wrong. He's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, Chief Minister साहब का जो ये वादा हुआ कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को, ये वादा कब पूरा होगा? कब जुडिशियल पावर्स देंगे? कब वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? Sir, for 20 years I have been screaming, shouting for Waqf land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on Waqf land. Buildings पे building, international airport has come up on the Waqf board land. तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब। तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते सर। सर, अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है साहब, 77,000। एंड इन द सेकेंड सर्वे, अभी मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड। अगर 13,000 आर द इंस्टीट्यूट सर, 13,000 are the total institute who have waqf land, but the acreage of waqf land is 3,000 sir. 3,000 sir, अगर gazette नहीं आया तो ये 3,000 भी चले जाएंगे। 77,000 sir. Through you, I would like to request the honorable minister साहब to kindly call for a meeting sir. ये बड़ा vast subject है sir. Call for a meeting. Let us sit together and see what is the encroachment. Who are the encroachers? And let us sit together and identify and see how best we can protect the Waqf land. We need to protect the Waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper. 1 लाख करोड़ के सब, I would say not 1 लाख करोड़ sir, 10 लाख करोड़ के वक्फ की जायदादें हैं जो तबाह बर्बाद हो रही हैं सर। सर, थ्रू यू I request sir, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि प्लीज बुलाइए
और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को जो देंगे बोले थे वो प्लीज इमीडिएटली वो दीजिए सर। थैंक यू सर। Minister for BC Welfare. जी कोरोना पे बात करने के लिए आपको नोट दिए, उसमें हमारी पार्टी को 6 मिनट दिए था। आजाद साहब कैसे है साहब, खैरियत साहब, थैंक यू सर बोले थे, चलिए खत्म हो जाता। CEO RO जितने बोले जब तक खत्म हो जाता। सर मैं 20 साल से ये हाउस में होता, 11 15 पॉलिटिकल पार्टीज भी रहे थे, टाइम मिलता था। सर अगर ऐसा है तो ठीक है साहब, आप लोग चला लीजिए, हम आते भी नहीं, आप लोग भी चला लीजिए। ये सही नहीं है साहब, आप इंसाफ करना चाहिए, आप इंसाफ करिए। आप बताइए, आप एक मेंबर भी रहा तो आंध्र प्रदेश असेंबली में आधा घंटा बात करते। मैं 5 मेंबर के साथ हाउस में लीड करा मेरी पार्टी, 6 मिनट क्या बोलेंगे साहब, आप बोलिए साहब, ये कोई इंसाफ नहीं है साहब। आप जानते हो अकबर साहब, जुमला चर्चा 90 मिनट्स का है। इसमें पार्टी के हिसाब से, पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम डिसाइड करा हुआ है। उससे बढ़ के कुछ अपन ज्यादा नहीं करे, जो मेंबर्स के जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से करे सो है। वो जुमला 90 मिनट्स को उसको बना के आप देखिए साहब, मैं कुछ भी नहीं बोला साहब ने, आप बोलिए साहब, आप खुद सोचिए, दुनिया थम गई है, वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, पीपल आर डाइंग, इकोनॉमी इज फॉलिंग, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, हेल्थ वर्कर्स आर लूजिंग देयर लाइव्स, such an important issue where the world is at a halt. प्लीज टेक And you want to give only 6 minutes for that? And also, अब मैं लड़ना नहीं चाहता सर, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। I don't want, सर आपका इख्तियार है, आप जो बोले वो सुनेंगे साहब। आप 6 मिनट बोल रहे हैं ना साहब, ठीक है साहब, 6 मिनट ही बोलेंगे, हम चले जाते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है सर। अब आप इतना बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप एक वक्त माइक नहीं दी, माइक भी नहीं दी साहब। मैं 5 MLA इलेक्ट हुआ हूँ, मगर ऐसा नहीं देखा साहब। प्लीज कोऑपरेट। ऐसा नहीं है साहब। गंदरा कमला का मैं क्वेश्चन आवर है साहब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू है। अध्यक्ष ఏ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ప్లీజ్ కోఆపరేట్, ప్లీజ్ आप बुलेटिन निकाले सर। 2014, కోఆపరేట్। 15 నుండి आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ఓకే ఓకే काइंडली लुक इनटू इट। और इतना बोलने के बाद आप माइक भी नहीं देते, आप नहीं क्वेश्चन और है ना सब माइक भी नहीं देना सर। इट्स एन इंपॉर्टेंट, यू हैव लेड अ पेपर, you have laid a paper. If you want to go by the rule, I will take out the rule book and also Please. mention the rule number Question- and what the rule says. क्वेश्चन और ओन दीजिए। I can protest on that. नहीं क्वेश्चन और ओन दीजिए अकबर साहब। क्वेश्चन आवर नहीं साहब, आप 6 मिनट देंगे, आप 6 मिनट में क्या बोलेंगे साहब? प्लीज कोऑपरेट अकबर साहब। Sir, Please I'm cooperate. sorry to say, sir. Please cooperate. If this is how democracy is going to Please run, cooperate, how is it Akbar going to sahab. run? God save the democracy in the house. అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ये गलत बात है। 2014-15 నుండి इतना इम्पोर्टेंट मसला आप बोले कि मैं कहना साहब। प्लीज कोऑपरेट साहब। 2014-15 నుండి 2020-21లోని ఈ తేదీ వరకు బీసీలు, ఈబీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనార్టీలకు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ పథకాల ద్వారా కానీ ఇప్పటి వరకు 7,14,575 కుటుంబ A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235,
अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।